And welcome to session. So today we're going to discuss time, speed, and distance part 5. And in previous session we have discussed these topics. Today we're going to do trains. So if you see the trains concept, all the previous concepts will be used till now. Whatever we have learned, basic equations, omnis eq equal to st, and we have learned how to make use of when distance is constant, when speed is constant, when time is constant, how to utilize this relation, and we've also seen relative speed. So all these concepts, average speed, gonna be used in the trains. But one new thing will be there, that till now whatever we have discussed, the length of object was negligible. Till now whatever concepts we have discussed, we are taking that a person was moving and person has negligible or zero length. This thing is, I hope you are able to understand. The only difference between previous questions and the concept that we're going to discuss is that now the objects that you are comparing, the like objects you are comparing are, or in the questions that have a length, that have a significant length, that you need to consider. Now like there are no, like जैसे पहले क्या होता था कि दो पर्सन है, Ram and Sam, both are moving towards each other, so their length is negligible ना. राम और श्याम की कोई लेंथ नहीं है, they have negligible length. But in cases of train, you cannot avoid the length of train, because train has a huge length, like 1 kilometer, like 1200 meter, 800 meter. So this length you cannot ignore. So we have to just take care of this thing, and all the concepts will be same. So let's discuss. First discuss a case where a train crosses an object, single train, a train crosses an object with negligible length. Fine. So like suppose this is a train, and let's take a negligible object. You can take a man, you can take a pole, है ना. Generally questions में तुम्हें यही दिया होगा. तो let's take a pole. This is a pole. इस pole की negligible length है, and train has, let's say, L length, and the speed of train is suppose x meter per second. So you have to check one thing here. When train will cross this object, when train will cross the pole, so what will be the distance covered by the train? ये चीज तुम्हें समझनी है और ये याद रखनी है. तो देखो कैसे होगा. सपोज ये पोल है. अब तुम्हें क्या करना होगा, यू हैव टू ऑब्जर्व जस्ट वन थिंग. यू हैव टू टेक अ पॉइंट ऑन द ट्रेन, एंड इट इज feasible, it is like easier if you take that point on the train at a tip of train. यहाँ पर मैंने ट्रेन के एक पॉइंट ले लिया, that is A. So this is the condition, this is the situation where train started crossing the pole. अब second situation draw करते हैं. Let's draw the second situation, second scenario. ट्रेन की लेंथ अगेन L है, L थी. Now this is the second situation. Where now this A point is here. At this point, train started to cross the pole. Now train has crossed the pole. So during this time, what is the distance traveled by the train? Distance traveled by the train. So just what you need to do, take a point on train. You can take anywhere a point. There will not be any problem. But it will be easier. It will be like convenient to take that point on the tip of the train. So I have taken it here. So how much this point has moved? This point has moved by L meter. So train has covered a distance of L meter, or you can say train has covered distance equals to its length. I hope this thing is clear. ये बात सबको समझ में आ गया. तो जब भी ट्रेन एक लाइक नेग्लिजिबल लेंथ के ऑब्जेक्ट को जो मूव नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, पोल इज नॉट मूविंग, है ना. एक स्टैंडिंग पोल को और को क्रॉस करेगा, देन ट्रेन विल कवर डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स ओन. अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है. सो दिस इज द वन केस. नाउ देयर विल बी द केसेस वेयर दिस ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग. तो वो क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है. दिस इज द सिचुएशन वेयर स्टैंडिंग पोल, ऑब्जेक्ट इज इमूवेबल एंड ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ. सो दिस इज अ केस, ऑब्जेक्ट इज इमूवेबल with negligible length. ठीक है. दो केसेस हैं. देन इन दिस सिचुएशन ट्रेन विल कवर द डिस्टेंस इक्वल टू length of its own. Now let's see this question.
A train running at 100 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो जो अभी मैंने सिचुएशन लाइक यहाँ पर एक्सप्लेन किया वही सिचुएशन पे क्वेश्चन है कि एक पोल है एंड ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर दी हुई है एंड इट क्रॉस द पोल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ट्रेन यहाँ पर ऐसे हो गई, ये 5 सेकेंड लगा इस पोजीशन को इस पोजीशन में चेंज होने में। तो ट्रेन ने कितनी लेंथ कवर की होगी, इक्वल टू इट्स ओन लेंथ, दिस लेंथ विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड इन 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स हो गया। अब इसको कन्वर्ट करो, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो वो कर लेना, लाइक इसको या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 इंटू 60। तो दिस विल बी द लेंथ, यहाँ से जो लेंथ आ जाएगी 12 एंड 10 आ गया 10 अपॉन 72 10 अपॉन 72। सो दिस इज किलोमीटर लेंथ है जो तुम्हारी 1 किलोमीटर में। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक, इतना किलोमीटर है, जस्ट डू द कैलकुलेशन। तो दिस इज 5 अपॉन 36, तो 5 अपॉन 36 किलोमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये किलोमीटर में लेंथ है, ठीक है, करोगे तो मीटर में लेंथ आ जाएगी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज क्या कर सकते थे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तब उसमें निकाल लो, तो कैसे भी निकाल सकते हो। अ ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन्स हु आर वॉकिंग। अभी मैंने तुम्हें बताया कि अभी जो हमने डिस्कस किया दैट वाज द कॉन्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमूवेबल, बट नाउ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग। तो देखो कैसे करोगे, सपोज ये ट्रेन है एंड दिस इज अ पर्सन। नाउ ट्रेन स्टार्ट क्रॉसिंग दिस पर्सन, और ट्रेन की स्पीड है x, इस पर्सन की स्पीड है y। अच्छा, अगर ट्रेन को कोई ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा है, कोई लाइक है ना, समवन इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड ही हैज टू क्रॉस समवन हु इज अहेड ऑफ हिम, तो स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ट्रेन को इस मैन को क्रॉस करना है, देन ट्रेन मस्ट हैव लाइक ग्रेटर स्पीड देन, ये रिलेशन होना चाहिए, अदरवाइज ट्रेन कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, जब इसको ट्रेन क्रॉस करेगी, सपोज यहाँ पर तो करेगी नहीं, लेट्स टेक ये पॉइंट P है तुम्हारा, लेट्स टेक दिस इज अ P पॉइंट। ये P पॉइंट पर कहीं पर ट्रेन इस मैन को क्रॉस करना स्टार्ट करती है, तो पर्सन भी मूव कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं पोल की तरह पर्सन खड़ा रहेगा, तो वहीं पर लाइक सपोज पर्सन विल रीच समवेयर हेयर, देन ट्रेन का पोजीशन ऐसा होगा, देन ट्रेन वुड हैव क्रॉस दिस पर्सन, ठीक है, देन ट्रेन वुड हैव क्रॉस दिस पर्सन। तो यहाँ पर देखो कैसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ट्रेन ने अब यहाँ पर कितनी डिस्टेंस कवर की है, एक तो ये डिस्टेंस भी कवर की है और एक खुद की लेंथ भी ट्रेवल की है। बट अगेन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करके, वी कैन इग्नोर दिस थिंग। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहले ये कंडीशन आई होप क्लियर है माइंड में कि ऐसा हो रहा होगा, ये स्टार्ट करेगी ट्रेन क्रॉस करना इस पर्सन को, देन पर्सन भी थोड़ा आगे मूव कर जाएगा बिकॉज नाउ पर्सन इज ऑल्सो मूविंग एंड ट्रेन, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा व्हेन ट्रेन हैज क्रॉस्ड दिस मैन। अब देखो यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, रिलेटिव डिस्टेंस अगर ये पॉइंट लेते हैं हम ट्रेन पर, लेट्स टेक ए पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट। तो अगर देखो इस ए पॉइंट ने ट्रेन पर रिलेटिव डिस्टेंस कितनी कवर की है इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, लेंथ ऑफ ट्रेन, ए यहाँ पर था, पर्सन से 0 डिस्टेंस थी, अब ए पॉइंट L मीटर की दूरी पर है, तो रिलेटिवली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इस पॉइंट ने, दैट इज ऑन द ट्रेन। तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, है ना। आई सजेस्टेड दैट टेक अ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ट्रेन, सो दैट विल बी हेल्पफुल। तो रिलेटिवली इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है पर्सन के रिस्पेक्ट में। देखो फॉरगेट अबाउट रोड, ये रोड है कहीं पर, इसको भूल जाओ, जस्ट चेक विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, रिलेटिव चीज हम यहाँ पर यूज करें। तो रिलेटिवली इसने L डिस्टेंस ट्रेवल की, तो L डिस्टेंस ट्रेवल की है। रिलेटिव स्पीड क्या है इस पॉइंट की, रिलेटिव स्पीड अगर ट्रेन को पूरा हम यही पॉइंट मान लें, जस्ट रिमूव द ट्रेन, जस्ट टेक दिस एज अ लाइक, है ना, इतनी ही ट्रेन है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, x माइनस वाई, रिलेटिव स्पीड इतनी होगी x माइनस वाई, इज इट आर नोट, रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई होगी। और ये कितनी सेकेंड में क्रॉस किया है, तो लेट्स से
s सेकेंड में क्रॉस करता है. So this is the relation that we will be using. I know that many of you will be using this thing, but तुम लोग दिमाग नहीं लगाते होगे कि ये क्या हो रहा है. I hope now this thing is clear. तुम्हें exactly दिख रहा है चीजें क्यों हो रही हैं और कैसे ये इक्वेशन आ रही है. दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव. ये बहुत लोग आई नो इक्वेशन ही लिख पा रहे होगे तुम लोग, बट तुम्हें ये क्लैरिटी नहीं होगा कि ऐसा क्यों आ रहा है इक्वेशन. तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है. रिलेटिव डिस्टेंस हमने देखी है ना, फिर रिलेटिव स्पीड निकाली, फिर टाइम, उससे हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन निकला है. तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर. व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है. ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So two persons were walking at 4 kilometer and 8 kilometer per hour in the same direction in which train is going. तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसा भी हमने केस लिया था. तो लेंथ ऑफ ट्रेन L है एंड इस पर्सन को लेट्स टेक स्पीड ऑफ ट्रेन x है. तो x माइनस 4 से कितने सेकेंड में, दैट इज 18 सेकेंड. एंड सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना बेटर रहेगा. दिस विल द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल. तो लेंथ ऑफ ट्रेन इस पर्सन के लिए भी सेम रहेगी. तो सिमिलर इक्वेशन दूसरे पर्सन के लिए बना लो. दैट इज x माइनस 8 इंटू 20 सेकेंड 60 इंटू 6. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पहले तो, और दिस इज दिस एंड दिस इज 9x माइनस 4 36. कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कहीं पर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. 8 एंड दैट इज 4 44. आई होप आई हैव डन इट राइट. x की वैल्यू 44 होगी, मींस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर. सपोज अगर स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा होता तो 44 किलोमीटर पर आवर. अब स्पीड ऑफ ट्रेन निकला है, लेंथ किसी में भी वैल्यू पुट कर दो. 44 माइनस 4 दैट इज 40. 18 60 अपॉन 60. ये याद रखना है. हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम इसे कैंसिल कर देते तो यहाँ पर लिखते तब भी हम भूल जाते उसे. 6 3 एंड 20 4 5. तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 1/5 kilometer, or you can say 1/5 into 1000 meter. So that is 200 meter. Length of train is 200 meter. I hope this thing is clear. Most importantly, you have understood the concept, how train is moving, how person is moving. Now let's see a case when train and object moving in opposite direction. तो अभी हमने जो पहला केस देखा, सबसे पहला केस देखा तो उसमें तो पोल था, मूव नहीं कर रहा था, है ना. दैट वाज द फर्स्ट केस. तो डैट डजेंट मैटर, लाइक ट्रेन इधर से है इधर से है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. दूसरा हमने देखा व्हेन ऑब्जेक्ट वर मूविंग ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ, और दोनों अपोजिट. तो मैं दोनों यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. व्हेन बोथ वर मूविंग इन लाइक सेम डायरेक्शन. अभी मैंने तुम्हें ये वाला एक्सप्लेन किया. लास्ट क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया, ये पर्सन था और ये पॉइंट x की स्पीड से मूव कर रहा था, ये y की स्पीड से मूव कर रहा था, और ट्रेन पे a पॉइंट कहीं था. एंड आफ्टर फ्यू आवर्स जब ट्रेन इसको क्रॉस करती, देन दिस इज द सिचुएशन. ए पॉइंट यहाँ पर और ये y की स्पीड से, ये x की स्पीड से, है ना. तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन, है ना, इसके बीच की ये आ गई. तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था. अब देखो क्या सिचुएशन है. नाउ लेट्स सी दिस सिचुएशन. ये तुम्हारी ट्रेन है, ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड लेट्स टेक दिस इज अ पॉइंट P. ये P पॉइंट है एंड पर्सन इज हेयर, बट नाउ दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अच्छा, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि x शुड बी ग्रेटर देन y इन ऑर्डर टू ट्रेन क्रॉसेस द पर्सन. बट यहाँ पर क्या ये मस्ट होगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. इज इट नेसेसरी दैट स्पीड ऑफ ट्रेन मस्ट बी ग्रेटर देन, ये कंडीशन रिक्वायर्ड है या नहीं. इज इट रिक्वायर्ड फॉर दिस सिचुएशन आर नॉट, है ना. जैसे यहाँ पर मैं तुम्हें सिचुएशन बताया था कि जब ट्रेन की स्पीड पर्सन से ज्यादा होगी तभी वो उसको क्रॉस कर पाएगा. यहाँ पर क्या ऐसा है, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. ठीक है, तो ये मुझे बताना यस और नो इन द कमेंट सेक्शन विद द स्लाइड नंबर 6, और लिख देना एक्सप्लेनेशन अपना. ठीक है, चलो अब देखते होगा क्या. अब जब सिनारियो जब क्रॉस कर रही होगी ट्रेन, इसको क्रॉस कर जाएगी. जब इसको ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, ये ऐसे मूव कर रहा होगा और ट्रेन ऐसे होगी. ट्रेन पे पॉइंट लेते हैं, ए पॉइंट. लेट्स टेक अ पॉइंट ए ऑन द ट्रेन. तो यहां पर देखो ये गैप आ रहा था, यहां पर दिस वाज द गैप. यहां पर देखो ये आ रहा है.
तो अब देखो समझो इसको रिलेटिव स्पीड से फिर से समझते हैं। ट्रेन की लेंथ एल है, ट्रेन की लेंथ एल है, तो यहाँ पर देखो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी कवर की है ट्रेन ने। वैसे तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर की है, ट्रेन ने तो डिस्टेंस एल माइनस, और अगर ये गैप हम कुछ ले लेते हैं बी, तो एल माइनस डी डिस्टेंस कवर की है ना। पॉइंट ट्रेन यहाँ पर थी, अब यहाँ पर एल माइनस बी कवर की। बट अगर रिलेटिव डिस्टेंस देखो विद रिस्पेक्ट टू योर दिस पर्सन, तो ट्रेन हैज कवर्ड डिस्टेंस एल। पहले देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 थी, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इस पर्सन के बीच में और इस ए पॉइंट के बीच में एल है। तो ट्रेन हैज कवर्ड एल किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू योर पर्सन। इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ट्रेन ने एल कवर किया। जैसे यहाँ पर ट्रेन ने कवर तो एल प्लस ए समथिंग की थी, बट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ट्रेन ने डिस्टेंस जो कवर की थी दैट वाज एल। सिमिलरली यहाँ पर अब स्पीड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, ये जो भी होगा ये तुम्हें बताना है मुझे, वाई एक्स ग्रेटर होनी चाहिए या फिर कैसे भी चलेगा। दिस यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सपोज कितना एस टाइम में किया, तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पर यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें हो रही है। बट देखो डिफरेंस कोई नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्या इक्वेशन आ रही थी, यहाँ पर एक्स माइनस वाई एस, यहाँ पर भी यही इक्वेशन आ रही थी, है ना, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल करेंगे। और जस्ट अ मिनट, एक मिस्टेक, रिलेटिव स्पीड ये होगी ना, अब रिलेटिव स्पीड विल बी दिस वन। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। तो नाउ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस वाई होगी, फाइन। तो दैट इज एस। अब तुम्हें यहाँ से खुद ही पता चल रहा होगा, है ना, कि लाइक एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, या फिर इस पे भी काम चल जाएगा। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। आई होप तुम्हें तीनों सिचुएशन समझ में आ गई होंगी कि लाइक कैसे क्या हो रहा है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। A train crosses a person who is walking, person is walking at 10 किलोमीटर पर आवर in opposite to the direction in which train is going. So similar situation है जो भी हमने डिस्कस किए। ये ट्रेन है तुम्हारी and this is a person walking at 10 किलोमीटर पर आवर in opposite direction। तो ट्रेन इधर को है और ये पर्सन इधर को है। क्रॉसेस इन 15 सेकंड्स, 15 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर। तो 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 60 प्लस 20 रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड है ना 60 प्लस 10, पर्सन और ट्रेन की रिलेटिव स्पीड 70 आएगी, इनटू टाइम दैट इज 15 सेकंड। 15 सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 15 4 दैट इज 70 on 4 into 60, so this is 7/24 किलोमीटर इज आंसर। जो आंसर अब जैसा तुम्हारा आंसर दिया हो वैसे इसको कन्वर्ट कर लें। लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी 7/24 किलोमीटर। नाउ लेट्स सी व्हेन लाइक अदर सिचुएशन। so we have till now like discussed situations where object have no length or like negligible length, है ना। so we have discussed like 3 situation where train were crossing like object, a pole, a person that is not moving, this immovable, ठीक है। then second situation we have covered when instead of pole there was a person and both were moving in the same direction, train and person. Third situation we have discussed where train and person was moving in opposite direction. So we have discussed 3 situations. Now we are gonna discuss situation where train crosses an object with significant length. तो ऐसा लाइक कौन सा सिचुएशन हो सकता है, व्हेन ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म, व्हेन ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म इज इमूवेबल, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही 3 सिचुएशन बनेंगे। एक ये हो गया। दूसरा सिचुएशन व्हेन ट्रेन्स, दोनों ट्रेन हो, दोनों मूवेबल और सिग्निफिकेंट लेंथ की हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। तो पहला केस सिंपल वाला डिस्कस करते हैं, प्लेटफॉर्म, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। तो व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, so this is suppose platform of length p and this is a train of length n. so what will be situation, what will be equations, है ना, equation क्या बनेंगी वो देखते हैं। so let's take again point A here and when train will cross the platform, train will be here, यहाँ पर कहीं पर ट्रेन हुई। तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, दैट इज L प्लस p with the speed of, let's say ट्रेन का स्पीड है x
एंड लेट्स से इन टाइम सेकंड। सो दिस विल बी योर इक्वेशन जो तुम्हें बनानी होगी जब क्वेश्चंस होंगे दैट यू हैव टू यूज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, सिंपल सा केस है। और इसमें आई थिंक लाइक अगर तुमसे क्वेश्चन भी बहुत लाइक विल नॉट डू अ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे एनीवे। बट आई होप ये समझ में आया तुम्हें, जब ट्रेन एक सिग्निफिकेंट लेंथ के ऑब्जेक्ट लाइक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा दैट इज नॉट मूविंग, तो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा एंड और कैसे ये कैलकुलेशन करो कि दिस विल बी द इक्वेशन। नाउ लेट्स सी व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब वो वाला सिचुएशन आ गया, ये दो ट्रेन है तुम्हारी एंड दीज टू ट्रेन, अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ भी है एंड दैट इज ऑल्सो मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ट्रेन इधर को मूव कर रही है, ये इधर को मूव। लेट्स से ए पॉइंट हेयर, लेट्स से बी पॉइंट हेयर, लेट्स से लेंथ ऑफ दिस ट्रेन L1, लेंथ ऑफ दिस ट्रेन L2, L1 LB L2 एनीथिंग वी कैन टेक। तो भी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। अगर इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो डिपेंडिंग ऑन स्पीड, अगर स्पीड जो ज़्यादा होगी लाइक अगर सपोज लेट्स टेक दिस पॉइंट P, अब जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस साइड पर होंगी या लेफ्ट पे होंगी या राइट पे होंगी, दैट विल डिपेंड ऑन x की स्पीड ज़्यादा है या y की स्पीड ज़्यादा है, कौन सी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो विल नॉट गेट इन टू दैट पॉइंट। सिंपल देखो कि लाइक जब ये ट्रेन क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी, किसी भी ट्रेन की, किसी भी कोई भी ट्रेन कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी। तो अगर सपोज इधर क्रॉस करते हैं तो लेट्स टेक, अगर एक क्रॉस करेंगे तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा, ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर एक क्रॉस करेंगे एक दूसरे को दिस विल द सिचुएशन, ए पॉइंट मैंने इसका लिया था, बी पॉइंट इसका लिया था। तो देखो अगर पहले ए वाली ट्रेन को लो तो ए वाली ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ट्रेन ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसका ए पॉइंट देखो यहाँ पर था, दिस पॉइंट वॉज हेयर, यहाँ पर था। नाउ दिस इज एट दिस लेंथ, इसके यहाँ पर आ गया, रिलेटिवली कितना ट्रेवल किया, एक तो उसने अपनी लेंथ ट्रेवल की और L2 ये भी ट्रेवल किया, ये भी ट्रेवल किया। देखो क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे तुमने लाइक मूविंग ऑब्जेक्ट में देखा था, जो मैंने एग्जांपल पीछे एक्सप्लेन किया था, जो केस था है ना, उसमें वो आगे जाके हो रहा था, दैट्स वाई इसमें भी तुम्हें वो नहीं दिख रहा होगा। इसमें दिख रहा है कि इसने तो यार इतनी लेंथ ट्रेवल की, बट रिलेटिवली देखो तो स्पीड इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। एक तो ट्रेन ने, ऐसे सोचो लाइक जस्ट अभी भूल जाओ उसे, जस्ट थिंक लाइक दिस, यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये मूव कर रही होगी चलो, बट अभी के लिए इसको ले लो कांस्टेंट है। तो जैसे मूव कर रही होगी तो ये लेंथ कवर करेगी पूरी, फिर अपनी लेंथ आगे आएगी, तो टोटल कितना लेंथ ट्रेवल करेगी, L1 प्लस L2। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एग्जैक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है, रीजन बीइंग दोनों मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग, दैट इज द रीजन, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखो, लेट्स सी दिस केस, लेट्स सी दिस केस, L2 ने कितनी कवर की होगी, इस ट्रेन ने भी क्या किया होगा, यहाँ से ये ट्रेन स्टार्ट करी तो इस ट्रेन ने पहले तो ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी पूरी, और फिर जब ये यहाँ ये पूरी कवर करने के बाद इसने अपनी भी पूरी लेंथ कवर की होगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आ गई है ना, यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर था, ऐसे देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 थी, ऐसे भी देखो देख सकते हो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 थी, ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 0 थी। अभी ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, L1 प्लस L2। सो बोथ द ट्रेन विल कवर L1 प्लस L2 की डिस्टेंस। ये वाली ट्रेन भी L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और ये वाली ट्रेन भी L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस केस व्हेन ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करेंगे तो क्या केस होगा, तो सपोज ये L1 ट्रेन है और ये L2 ट्रेन है और ये इसको क्रॉस करेगी। अब सिचुएशन अगेन, एक्स की स्पीड वाई से ज़्यादा होनी चाहिए तभी उसको क्रॉस कर पाएगी, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से देखो क्रॉस करना स्टार्ट करती है, तो लेट्स टेक ए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अब जब इसको क्रॉस कर जाएगी, जब इसको क्रॉस कर जाएगी तो लाइक ऐसा कुछ सीन होगा, L1 यहाँ पर होगा एंड L2, दिस विल बी द केस। एंड इसमें एक और चीज में, अगर इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, L1 प्लस L2, रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी और कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, 10 सेकंड, ठीक है। ये सीन आएगा इक्वेशन लिखने का। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये बी है
अगेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की रिलेटिवली इस पॉइंट से, है ना। इन दोनों के बीच की डिफरेंस देखो, अभी डिस्टेंस 0 है। अब डिस्टेंस देखो कितनी हो गई, अब डिस्टेंस हो गई है L1 प्लस L2। तो अगेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी L1 प्लस L2 एंड दैट विल बी स्पीड, रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई पर सेकेंड, जो भी टाइम होगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड विल गेट द मोर क्लियर। सो टोटल 6 केसेस आई थिंक में, आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। खुद से ड्रॉ करके देखना, बार बार ट्राई टू इमुलेट, है ना, ट्राई टू टेक डिफरेंट एग्जाम्पल्स, देन यू विल गेट द क्लियरिटी। A train crosses a 40-meter long platform, 40-meter long platform in 40 seconds, in 14 seconds, 40-meter long platform in 14 seconds and a standing pole. So अगर ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो सिचुएशन याद करो, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, है ना, इक्वल्स टू, अब स्पीड कितनी है ट्रेन की, दैट इज नॉट गिवन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज नॉट गिवन। तो लेट्स टेक एस, लेट्स टेक एक्स, एक्स की स्पीड से 14 सेकंड्स में, 14 सेकंड्स में, एंड देन अदर सिचुएशन गिवन एंड अप स्टैंडिंग पोल। तो स्टैंडिंग पोल को जो ट्रेन क्रॉस करी 10 सेकंड में, तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 4x, x इक्वल टू 10। जो ट्रेन की लेंथ आई दैट इज 10 मीटर, ठीक है। A train crosses two platform of length 800 and 1206 and this what is the length of train? So this is also simple question, length of train। तो देखो क्या बनेगा, पहले तो लेंथ ऑफ ट्रेन, जब ट्रेन क्रॉस कर रही होगी प्लेटफॉर्म को 800 वाले को, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी ट्रेन, है ना, ट्रेन विल बी कवरिंग दिस डिस्टेंस कितने टाइम में, 6 सेकंड में। ट्रेन की स्पीड लेट्स से x। अब जब 1200 को ट्रेन क्रॉस करेगी तो इस इतनी लेंथ ट्रेवल करेगी कितना, 8 सेकंड में, स्पीड सेम रहेगी। अब इसकी वैल्यू रख दो, या फिर लाइक आई थिंक अगर इसको जस्ट डिवाइड कर दे आंसर आ जाएगा, 4L प्लस 3200 इक्वल्स टू 3L प्लस 3600, so that is L 3630, that is 400। so length of train is your 400 meter। two trains starts from the same station at a time but travel in opposite direction, है ना, तो लाइक सेम से स्टार्ट होते हैं, their speeds are 40 and 50 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर अपार्ट। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन लाइक इसमें लेंथ का कोई यूज नहीं है, दिस जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव स्पीड, सिर्फ रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। इसका सॉल्व करके मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में 13 स्लाइड नंबर के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें ये होगा कि तुम अप्रोच कैसे करते हो इस क्वेश्चन को, तो आई वुड लाइक इफ यू लाइक पोस्ट द सॉल्यूशन ऑल्सो कि तुमने इसको अप्रोच कैसे किया, वन लाइनर सॉल्यूशन होगा इसका। तो जस्ट लेट मी नो लाइक कमेंट सेक्शन में अपना अप्रोच भी मुझे दिखाना कि कैसे सॉल्व किया। टू ट्रेन्स pass each other on parallel lines, each train is 100 meter long, when they are going in the same direction the faster one takes 60 seconds to pass the other completely, if they are going in opposite directions they pass each other completely in 10 seconds, find the speed of the slower train। okay, तो पहले कंडीशन देखते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो सेम डायरेक्शन में ऐसा कुछ है, और जब इसको क्रॉस करेगी एंड दोनों की लेंथ है 200, तो 200 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, तो फास्टर ट्रेन क्रॉस करेगी स्लोअर ट्रेन को, ट्रेन विल कवर 200 किलोमीटर, दोनों की लेंथ इक्वल्स टू कितना टाइम में, 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में। तो अभी रिलेटिव स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस वाई, एक्स जो स्पीड है दैट इज द फास्टर वन ट्रेन, तो दिस इज 20/6, एक्स माइनस वाई इज 20/6। दूसरा सिचुएशन देखते हैं, when they are going in opposite direction they pass each other completely, तो each other जब पास करेंगे तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे, दोनों की लेंथ दैट इज 200, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो यू हैव ये इक्वेशन x माइनस वाई, स्लोवर की स्पीड निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू y की निकालनी, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू है यहाँ पर 20/6, x की वैल्यू आएगी 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है ना, 20 माइनस वाई। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक मैं करूँ तो मुझे अगेन बता देना कमेंट सेक्शन। 2y इक्वल्स टू
20 minus 20 by 6. So y 10 minus 10 by 6. Y equals to 50 by 6 meter per second. This will be your answer. Express train from A to C leaves A at 6:30 and 50 towards B 100 km away. Passenger train leaves B at 40 km at 7:30. Mr. Sam, the traffic controller at B realizes that both train are okay. So this is also question of relative speed. Just train का यूज है यहाँ पर. So just let me know answer in the comment section with slide number. ठीक है, इसमें कोई लेंथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये हमने ऑलरेडी कर रखे हैं सब. Two trains are traveling in the same direction at a speed of 50 km per hour and 30 km per hour. Two trains are traveling in the same direction. So same direction, 50 and 30. The faster one crosses a man sitting in the slower train in 18 seconds. तो देखो अब क्या होगा. अब जब भी तुम्हें बस ऐसा क्वेश्चन हो देन ट्रेन को भूल जाओ. देन फॉरगेट अबाउट ट्रेन. जैसे अगर ट्रेन में कोई ऑब्जेक्ट होता है, जिस मतलब इस ट्रेन को नहीं भूल जाना. अभी मैं बताता हूँ किस ट्रेन को भूल जाना है. ट्रेन, जैसे ट्रेन में सपोज तुम ट्रेवल कर रहे हो, तो जो तुम्हारी स्पीड होती है लाइक वो ट्रेन के इक्वल हो जाती है अगर तुम बैठे हुए हो. इफ यू आर नॉट मूविंग देन योर स्पीड एंड ट्रेन स्पीड इक्वल हो जाती है ना. तुम भी तो उतनी स्पीड से मूव कर रहे हो. ट्रेन में अगर एक दूसरे को देखोगे देन नो वन इज मूविंग. बट अगर बाहर से कोई देखेगा यू आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ ट्रेन. तो अब ये सिंपल इस केस को ले लो. लाइक फास्टर वन 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है एंड सेम डायरेक्शन, और इधर ये तुम्हारी स्लोवर वन भी ऐसे कुछ ट्रेवल कर रही है. मतलब नहीं कहीं पर भी हो 30 किलोमीटर पर आवर से. अब ये ट्रेन पीछे से आती है एंड क्रॉसेस एक पर्सन. इसमें कोई है, एक बंदा कोई है इसमें, उसको क्रॉस करती है. तो अब तुम्हें क्या करना है, ये सिचुएशन इसको हटा देना है, इस ट्रेन को हटा देना है एंड जस्ट कीप दिस एज अ पर्सन. जस्ट कीप दिस एज अ पर्सन. ट्रेन को भूल जाओ. ये पर्सन है जिसकी स्पीड ट्रेन के बराबर है 13 किलोमीटर पर आवर. अब लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन निकल आएगी. लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन 50 की स्पीड से, 50 नहीं रिलेटिव स्पीड होगी अब. 50 माइनस 20 दैट इज 50 माइनस 30 दैट इज 20 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड से इसको क्रॉस करता है. एंड इन हाउ मच टाइम, 18 सेकेंड्स. सॉल्व हो गया क्वेश्चन. 23 6 10. तो दैट इज 1/10 किलोमीटर लेंथ है या फिर 100 मीटर लेंथ. सिंपल. तो जस्ट तुम्हें ये केस लेना है. यू हैव टू जस्ट अवॉइड द ट्रेन. यू हैव टू जस्ट टेक अ पर्सन एंड विद द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर टेक टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 150 meters. It's traveling at a speed of 36 kilometer per hour in the same direction. अब देखो यहाँ पर क्या था, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा हुआ. ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो तुम्हें इसका भी लेंथ दिया हुआ है और इसका भी लेंथ दिया हुआ है. हाउ मच ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर, ट्रेन की 100 मीटर लेंथ है, ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर. A man sitting in another train 150 लेंथ ऑफ 150 मीटर. तो अब ये मैन को क्रॉस कर रही है अगेन. तो जो ये लेंथ है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. दिस इज अ रिडंडेंट डेटा. दिस इज अ रिडंडेंट डेटा. इसकी जरूरत ही नहीं है बिकॉज पीछे वाला सीन जो हमने क्रिएट किया था सेम वैसे ही करेंगे. ट्रेन को भूल जाओ, जस्ट कीप द पर्सन. ट्रेन को भूल जाओ, जस्ट कीप द पर्सन विद द स्पीड ऑफ ट्रेन. तो यहाँ पर हमें निकालना क्या था, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा. तो लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 100 मीटर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर यूज होगी तो दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर. 18 किलोमीटर पर आवर. एंड देन टाइम निकालना है. वी हैव टू फाइंड टाइम. यहाँ से टाइम निकलेगा, सिंपल है ना. दिस इज अ रिडंडेंट डेटा. हमें दूसरी ट्रेन की स्पीड की जरूरत ही नहीं है. जिसमें पर्सन बैठा हुआ है उस ट्रेन की लेंथ की जरूरत नहीं, बिकॉज ट्रेन सिर्फ पर्सन को क्रॉस कर रही है. ट्रेन इज नॉट क्रॉसिंग टू द ट्रेन, ट्रेन इज क्रॉसिंग टू द पर्सन. तो हमें पर्सन को ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व करना होगा. दैट हैज अ स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके, तो ये तुम्हारा था लाइक दिस इज इन किलोमीटर पर आवर है ना.
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में अगर इसे बदलो, मीटर पर सेकंड में बदलो तो 5/18, तो दिस इज 5, क्योंकि ये मीटर में है, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर में, है ना, कुछ भी कर सकते हो। तो 20 सेकंड इज योर आंसर। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की हो। इंपॉर्टेंट ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, कैलकुलेशन तुम लोग वेरीफाई कर लेना। 20 सेकंड आंसर आ जाए। Two trains A and B are running in the same direction with speed 2:5. Okay. Observe that B coming from behind crossed his train completely in 60 seconds. Whereas a person on train B looks that he crossed train in 40 seconds. Find the ratio of length. दोनों ट्रेन का लेंथ का रेशियो निकालना है। तो टू ट्रेन विद स्पीड रेशियो में पता है ट्रेन का स्पीड रेशियो, रनिंग इन सेम डायरेक्शन एंड इसका लेट्स टेक 2x एंड को 5x लेते हैं और इसको 2x लेते हैं। द लेंथ ऑफ ड्राइवर ऑफ ट्रेन है, ड्राइवर यहाँ पर कहीं पर होगा, कहीं पर भी ले सकते हो, बट यहाँ पर लोगे तो आसान रहेगा। ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए ऑब्जर्व डेट, अच्छा ट्रेन ए की स्पीड कम है तो दिस है ना, ये वाला ड्राइवर। ट्रेन ए ऑब्जर्व डेट ट्रेन बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड क्रॉसेस हिज ट्रेन। तो यहाँ पर एक चीज और है कि उसे ट्रेन कब दिखाई देगी, जो 2x में है, जो ड्राइवर है वहां पर है, तो उसे ट्रेन कब दिखाई देगी, ही विल बी एबल टू सी व्हेन ट्रेन विल बी हियर। जब ये ट्रेन यहाँ पर, अब आई डोंट नो इससे लेंथ की लेंथ ज़्यादा है किसकी लेंथ ज़्यादा है, वी डोंट नो, बट लेट्स टेक दिस वन, कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी उस पर मत जाना कि वाली ट्रेन मैंने ज़्यादा लेंथ ले ली। दिस इज ट्रेन ए, दिस इज ट्रेन बी की लेंथ LB है। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए ऑब्जर्व दैट ट्रेन बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द ट्रेन क्रॉस्ड दिस ट्रेन कंप्लीटली इन 60 सेकेंड। तो इसको ट्रेन, ये वाली ट्रेन 60 सेकेंड में कंप्लीटली क्रॉस कर जाती है। तो अगेन ट्रेन को भूल जाओगे, दिस ट्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसकी ट्रेन को क्रॉस कर रही है मतलब इसको क्रॉस कर रही है, इज इट आर नॉट। अगर ये यहाँ पर है ड्राइवर और इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करता है, तो जब ये ट्रेन पूरी निकल जाएगी मतलब इसने इसको क्रॉस कर लिया, इसकी ट्रेन को, है ना, मतलब ट्रेन हैज क्रॉस दिस ट्रेन। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, लेंथ ऑफ, तो इसकी अभी हमने नेग्लिजिबल लेंथ ली, इसकी लेंथ हटा दी है, वी हैव जस्ट टेकन इस पर्सन को क्रॉस करती है, तो कितना LB लेंथ ट्रेवल करेगी, LB लेंथ। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 5x - 2x दैट इज 3x रिलेटिव स्पीड। पर्सन 2x से मूव कर रहा है, ट्रेन 5x से मूव कर रही है, एंड कितना टाइम में, 60 सेकेंड। सो दिस इज द लेंथ ऑफ LB ट्रेन। वेयर इज द पर्सन ऑन द ट्रेन B लुक्स दैट ही क्रॉस्ड ट्रेन इन A इन 40 सेकेंड। अब दूसरा सिचुएशन करते हैं, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, LB = 180x, ये लेंथ आ गया तुम्हारा और लेंथ ऑफ ट्रेन B। अब देखते हैं दूसरा सिचुएशन। वेयर इज अ पर्सन ऑन ट्रेन B, so this is ट्रेन B की स्पीड है 5x एंड अ पर्सन, लेट्स से पर्सन अगेन यहीं पर ले लेते हैं पॉइंट पर, दिस द पर्सन लुक्स दैट ही क्रॉस द ट्रेन। तो अब ये ट्रेन को कब देखेगा, जब ऐसे ट्रेन होगी। अगर ये यहाँ पर तो ट्रेन को ऐसे ही देख पाएगा ना, जब ट्रेन उसके बराबर में आ जाएगी। लुक्स दैट ट्रेन A, दिस इज ट्रेन A विद द स्पीड ऑफ 2x, ही क्रॉस्ड इन 40 सेकेंड्स। अब पता है क्या होगा, अब इसको भूल जाओ, फॉरगेट दिस ट्रेन, ये सिर्फ पर्सन है, ये पर्सन इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। ये पर्सन जो है, एक मिनट, ये पीछे से आ रहा है ना, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये ट्रेन पीछे से आ रही है ना, ये ट्रेन पीछे से आ रही है, 5x वाली पीछे जाएगी ना, जो फास्टर वो पीछे से आएगी अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन। ये तुम्हारी 2x है, ये LA ट्रेन है और दिस इज योर LB ट्रेन। अब ये ट्रेन पीछे से आ रही है और इसने इसको ऐसे देखा, दिस इज द ट्रेन, है ना, पीछे थोड़ी वो ट्रेन रही, ये ट्रेन ज़्यादा स्पीड वाली पीछे से आएगी ना। जो मैंने पहले समझ में आया तुम्हें, मैं पहले क्या गलती कर रहा था, मैंने पहले ऐसे ड्रॉ किया था, तो ये तो क्रॉस हो चुकी है अभी तो लाइक उसके बराबर आ गई,
ये अगर कोई पर्सन यहाँ पर है तो ये तो ऑब्जर्व कर लेगा इस वाली से कंडीशन पे, ये वाली तो नेक्स्ट कंडीशन है ना, ये वाली तो नेक्स्ट सिचुएशन है, ये जो पोजीशन है तो नेक्स्ट पोजीशन इसके बाद आएगी ना ये सिचुएशन। आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या मिस्टेक मैंने की थी। तो सिंपल यहाँ पर अब क्या होगा देखो, अब तुम्हें भूल जाना है कि ये ट्रेन है, जस्ट ये एक पर्सन है, दिस क्रॉसेस दिस ट्रेन, है ना, दिस क्रॉसेस दिस एलए ट्रेन इन 40 सेकंड्स। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एलए कवर करेगा, एलए कवर करेगा, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 3x, कितने टाइम में 40 सेकंड्स में। दोनों का रेशियो ले लो, आंसर आ गया, रेशियो निकालना एलए इज टू एलबी। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये तुम चीजें लाइक एक्चुअली समझ पा रहे हो, सिर्फ रट लेने से लाइक कि ऐसे सॉल्व होगा, है ना, जस्ट उससे चीजें समझ में नहीं आएंगी। वंस यू आर अंडरस्टूड कि कैसे क्या किसको क्रॉस कर रहा है ना, क्या सिचुएशंस होंगी, इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व, इफ यू आर एबल टू लाइक सी दिस थिंग इन योर माइंड कि कैसे ट्रेन मूव कर रही है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो यहाँ पर इस ट्रेन का कोई सेंस ही नहीं है ना, ये पर्सन ही उसको क्रॉस करे। So this way, 3:2 will be your answer. I hope you have got it, all these concepts. Now, two trains of length 100 meter and 150 meter cross each other in 12 seconds when they are traveling in opposite direction. When they are traveling in opposite direction, तो opposite direction ऐसे move कर रही हैं, तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना 250 ट्रेवल करेंगी, कितने 12 सेकंड्स में, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी x+y। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग तुम समझ पा रहे हो, आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन इज एबल टू गेट दिस पॉइंट कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इफ दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अब अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, इफ दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, द ट्रेन, यहाँ पर कॉमन होगा, द ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर क्रॉसेस, तो इसका मतलब क्या है, 100 मीटर की जो ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, क्रॉसेस द अदर ट्रेन कंप्लीटली इन 48 सेकंड। तो उसको जब क्रॉस किया होगा तो दोनों लेंथ ट्रेवल करनी पड़ी होंगी, वो हमने केस पीछे देखा था। 250 इक्वल्स टू कितना, x माइनस वाई अब रिलेटिव स्पीड होगी, और टोटल टाइम है 48 सेकंड। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन। टू इक्वेशन टू अननोन सॉल्व हो जाएगा, टू इक्वेशन टू अननोन, टू इक्वेशन टू अननोन। अब एक तो तरीका है कि दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करो, लाइक x+y, या फिर दो इक्वेशन बना के सॉल्व करो, इट्स अप टू यू कैसे तुम कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई फाइंड इट ऐसे आसान रहेगा तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, 4x माइनस 4y, तो दिस इज 3x एंड 5y, तो लाइक कितना आ गया ये, xy, x है 5, y है 3, है ना, x है 5, y है 3, तो 250 एंड यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, लाइक 5 पे 8a, लेट्स टेक x हो गया 5 है, y हो गया 3 है, ठीक है, तो दैट इज 8a इंटू 12। अच्छा किलोमीटर मीटर सब कुछ, हाँ वो सारा मीटर में ही है, तो a की वैल्यू आ गई, तो किससे कर सकते हैं, 250 8/12, a की वैल्यू ये आ गई। अब a की वैल्यू रख दो, दोनों की स्पीड निकल आएगी, x की स्पीड है 5 है, y की स्पीड है 3 है, तो 5 इंटू 250 8 इंटू 12 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड। कैलकुलेशन तुम कर लेना 3 एंड a की वैल्यू है 250/8 इंटू 12। अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो आई एम नॉट अवेयर, वो चेक कर लेना, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। दिस विल बी योर आंसर, जस्ट सिंप्लीफाई दिस कैलकुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेन्स, कैसे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, लाइक व्हाट विल द सिचुएशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। Like practice the questions from any book. Like recommendation will be do questions from Takshila book. Otherwise you can practice from anywhere, and I think you will not need anything else in the train, but other concepts can come. You can, if you have seen, we have used the relative speed का concept काफी use हुआ, because जब दोनों object move कर रहे हैं then relative speed का ही concept आएगा. So I hope you have understood that, and join this Telegram channel as well as group. Description में दोनों का link है. Subscribe to this video, subscribe to this channel, and I hope you have liked the video. So that's it for today. Let's meet in the next session.